Hello students, welcome back to Let Us Master English. We are going to recapitulate active and passive voice in this video. Contents of this video are: what is active and passive voice, use of active and passive voice, rules of converting active to passive voice, and most important, here I am going to tell you the trick how to learn all the rules within just 2 minutes. Then you will find examples of converting active to passive of present tense, past tense, future tense, modal verbs, and imperative sentences, followed by practice exercise. So students, are you ready? Let's get started. Now students, voice is of two types, active voice and passive voice. Now what is active voice? A verb is said to be in active voice if the subject of the sentence acts or performs the action. For example, Pooja sings a melodious song. So here who sings the song? Pooja. Pooja is the subject and the subject is acting. The subject is performing the action of singing a song. तो इस सेंटेंस में पूजा आपका सब्जेक्ट है और गाना कौन गा रहा है? पूजा. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो काम कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस. Now what is passive voice? A verb is said to be in passive voice if the subject of the sentence receives the action or is affected by it. For example, a melodious song is sung by Pooja. Now here a melodious song is shifted to the place of subject. But is it doing any action? No. Melodious song कुछ नहीं कर रहा. Rather, it is receiving the action done by Pooja. So, in active and passive voice, both the sentences, Pooja sings a melodious song and a melodious song is sung by Pooja. They express the same meaning, but only the way of expression is different. Now students, in this slide, we are going to learn the use of active voice. When do we need to use active voice while speaking or writing? Active voice is used to emphasize the doer of the action. For example, Ashish won the swimming competition. Ashish is the winner. तो जिस सेंटेंस में हम डूअर को, काम करने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, फॉर us here the winner is the most important person. So there we make use of active voice. जब हमारे लिए काम करने वाला आदमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. Now students, let us see when to use passive voice. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं यहाँ पे जो हमें पैसिव वॉइस में लिखने होते हैं. Now passive voice is used to emphasize the action when we are more interested in the action rather than the doer. तो पैसिव वॉइस हम वहां यूज करते हैं जब हमें एक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट हो. किसने वो काम किया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज पेंटेड बाय द लेबरर्स. हम ये बाय द लेबरर्स वाला पोर्शन छोड़ देते हैं. We simply say my house is painted because for us the action is more important. वो काम किसने किया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. Passive voice is also used when the doer is not known. For example, my watch is stolen. Now do we need to use here by somebody when the doer is not known?
When the doer is unknown, जब हमें पता ही नहीं है कि वो काम किसने किया है, तो वो मेंशन करने की क्या जरूरत है? So we simply say my watch is stolen. Now passive is also used when the doer is obvious. जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पहले ही पता होता है कि ये काम किसने किया है, तो फिर उसे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. डू वी नीड टू से बाय ह्यूमन बींग्स? हम सबको पता है सिर्फ इंसानों के पास ही बोलने की शक्ति है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न कन्वर्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव. और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, नॉर्मली ओनली दोज वर्ब्स कैन बी पैसिवाइज्ड विच हैव एन ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स. सिर्फ उन वर्ब्स को पैसिव में चेंज किया जा सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो. ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एक्टिव वॉइस? सब्जेक्ट, दैट इज द डूअर, प्लस वर्ब यानी क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल. एक्टिव, शी टीचेस इंग्लिश. Here she is the subject, that is doer of the action. Verb is teaches and object is English. Now how to convert this into passive? इसका passive क्या बनेगा? English is taught by her. Now students, let us see all the steps involved in converting active into passive voice. Now step number 1. Put the object in the place of the subject and the subject in the place of the object. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था she, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया by her. और एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और पैसिव में ये शिफ्ट होके सब्जेक्ट की जगह पे आ गया आगे. So these arrows shows that the subject is shifted to the place of object and object is shifted to the place of object. So सबसे पहली स्टेप हमारी ये होती है. स्टेप नंबर 2, change the verb into third form. बेटा जब भी आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हो तो हमेशा याद रखना सभी टेंसेस में जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज होगी. यहां पे हमारी वर्ब क्या थी? टीचेस. नाउ व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ टीच? टीच, टॉट, टॉट. सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज टॉट, इसलिए हमने टीचेस को टॉट में कन्वर्ट कर दिया. नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? Use by before the passive object. अब पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है? हर. तो इसके पहले हम प्रेपोजिशन by लगा देंगे. स्टेप 4, let us see the changes in pronouns. Here in the table I have shown you subject in active voice, in the second column object in passive voice. So I becomes by me in passive. We changes into by us. You changes into by you. He changes into by him. She changes into by her. जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा. She teaches English. So इंग्लिश इज टॉट बाय हर. जो शी है वो बाय हर में चेंज हो गया. दे चेंजेस इनटू बाय देम. सो दिस इज स्टेप 4. नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप 5, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू पैसिव. अब इसमें जो टेंस है, टेंस तो सेम ही रहता है पर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोस चेंजेस. फर्स्ट वी विल have a look at the rules, then I will tell you the trick how to remember the rules.
सो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करना है, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब and s or es is used with some of the subjects. he she it के पहले हम s es लगाते हैं. Now students, learning active to passive without knowledge of tenses is very difficult. We have already done tenses, so you can do it. If you want to revise your tenses again, then I have already made 13 videos on tenses. You can go and watch my video number 13 in which I have revised all tenses. So if you have any doubt about tenses, please go and watch that video first and then learn active to passive. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगी होती है, तो जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो द रूल इज और एम और आर लग जाएगा एज पर योर सब्जेक्ट, प्लस आपको मैंने बताया है वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज होती है. सिंपल पास्ट टेंस देखिए, उसमें क्या होता है, इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हुए आप लगाओगे वॉज और वर. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, प्लस वर विल बी चेंज्ड इनटू थर्ड फॉर्म. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होते हैं, इज और एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. अब इस टेंस में बेटा इज एम आर पहले से ही लगा होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हर कन्वर्जन में हमें एक चीज अपनी तरफ से ऐड करनी होती है. तो इज एम और आर के बाद हम बीइंग ऐड करेंगे एंड देन verb will change into third form as usual. उसी तरह आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से ही was और were लगा होता है. द रूल इज was और were प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. तो उसको जब कन्वर्ट करना है तो was और were के बाद being ऐड हो जाएगा एंड verb will be converted into थर्ड फॉर्म. उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द रूल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब इसमें भी हमें एक चीज ऐड करनी है. सो हेयर फॉर पैसिव आफ्टर हैज और हैव विल ऐड बिन प्लस वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म. और परफेक्ट टेंस में तो और भी आसान है, पहले से ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है. इन द सेम मैनर इन पास्ट परफेक्ट टेंस द रूल इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे आपको ये भी नहीं सोचना है कि हैज लगेगा या हैव लगेगा, हर सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगना है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड बिन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से ही लगी हुई है. नेक्स्ट रूल इज फॉर योर मॉडल वर्ब्स. अब मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपके सेंटेंस में यूज हुआ हो तो उसे कन्वर्ट करते हुए हमने मॉडल के बाद बी ऐड करना है एंड वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म. नाउ व्हाट आर दीज मॉडल वर्ब्स? अगर आपके सेंटेंस में विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, has to, have to, had to एटसेट्रा इनमें से कुछ भी लगा हुआ है तो उसके बाद हम बी ऐड करेंगे प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल कैन टेक विल बी कन्वर्टेड इनटू कैन बी टेकन, वुड टेक विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड बी टेकन, must take will be converted into must be taken, and so on. And rule 8 is, if this is based on perfect tense only, if after the modal verb have is used, after that we use third form of verb, and for its conversion modal plus have plus been plus third form of verb. अब बेटा ट्रिक क्या है हमारी,
हाउ टू लर्न द रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहली एक चीज हमें याद रखनी है कि हर टेंस में हमें अपनी तरफ से एक चीज जोड़नी होती है। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या उसके साथ एस है तो वहां पे हमने इज, एम या आर ऐड करना है। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो उसके साथ हमें वॉज वर यूज करना है। अगर इज, एम, आर पहले से लगा हुआ है तो उसमें हम बीइंग ऐड कर देंगे। उसी तरह से वॉज वर अगर पहले से लगा हुआ है सेंटेंस में तो उसके साथ भी हम बीइंग ऐड कर देंगे। और वर्ब आपको पता ही है कि हर वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर वहां पे हैज, हैव या हैड आपके सेंटेंस में है तो उसके बाद आप बिन यूज करोगे। अगर आपकी मॉडल वर्ब है यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें से कुछ भी आपके सेंटेंस में है तो उसके बाद आपने बी लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो स्टूडेंट्स, कितना आसान है रूल्स को याद करना। आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और बाकी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर अपने सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके बाद इज, एम, आर लगा दीजिए। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है देन यूज वॉज और वर। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर पहले से ही सेंटेंस में है तो उसके बाद बीइंग ऐड करना है। अगर हैज, हैव, हैड पहले से ही सेंटेंस में है तो उसके बाद बिन ऐड करना है। और अगर मॉडल वर्ब है तो उसके बाद बीई, बी लगा देनी है। और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। सो can't it be learned in just 2 minutes? It won't take you more than that time. So how simple it is, students, isn't it? Now let us see examples how to change active to passive. Here I have used given you examples of affirmative, negative, interrogative and negative interrogative sentences so that you may not face any difficulty at all. Simple present tense. For example, he drives a car. Passive, a car is driven by him. Now let us see इसमें हमने क्या क्या चेंज किए। एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट था आ कार, वो आगे आ गया। एक्टिव में आपका सब्जेक्ट था ही, वो पीछे चला जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा बाय हिम में। अपनी वर्ब है ड्राइव तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म दैट इज ड्रिवन। अब अ कार इज सिंगुलर तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे। अ कार इज ड्रिवन बाय हिम। नेगेटिव, ही डज नॉट ड्राइव अ कार सो इट विल बी चेंज इनटू अ कार इज नॉट ड्रिवन बाय हिम। और बेटा आपकी सुविधा के लिए मैंने ये रूल्स जो हैं वो साथ में ब्रैकेट में दिए हुए हैं। यू कैन रेफर टू दीज रूल्स इफ यू हैव एनी डाउट। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, डज ही ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे डू डज की जगह पे इज, एम, आर आ जाएगा। अब कार के साथ हम इज लगाते हैं। सो इज अ कार ड्रिवन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। और बेटा एक चीज और याद रखनी है कि एक्टिव पैसिव में अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो पैसिव में भी वो एफर्मेटिव रहने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव रहने वाला है, क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ही रहेगा। Next, negative interrogative. Does he not drive a car? Question mark. So it will be converted into is a car not driven by him? Question mark. Now let us see example of present continuous tense. अब आपको पता है continuous tense में हमने क्या ऐड करना है, अपनी तरफ से being ऐड करना है। Active, he is writing a letter. So passive, a letter. अब अ लेटर भी सिंगुलर है तो उसके साथ हमें इज ही लगाना है। अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। नेगेटिव, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। इंटेरोगेटिव, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। सो पैसिव इज a letter being written by him, question mark. Negative interrogative, is he not writing a letter, question mark. So it becomes is a letter
not being written by him, question mark. So isn't it simple? Now the next tense is present perfect tense. इस टेंस की निशानी क्या होती है? इसमें हैज और हैव यूज पहले से किया होता है और थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो हमें वो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और परफेक्ट टेंसेस में हमें बिन ऐड करना होता है अपनी तरफ से। सो एक्टिव, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। पैसिव, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब स्टूडेंट्स यहां देखो, एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट था दे, दैट इज प्लूरल, तो उसके साथ हमने हैव यूज किया था। बट पैसिव में द प्रोजेक्ट शिफ्ट होके सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। नाउ द प्रोजेक्ट इज सिंगुलर, सो विद इट वी यूज हैज। इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। नेगेटिव, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। पैसिव, द प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। इंटेरोगेटिव, have they completed the project, question mark. Passive, has the project been completed by them, question mark. Negative interrogative, have they not completed the project, question mark. So passive is has the project not been completed by them, question mark. Now students, next is simple past tense. And the rule for simple past tense is subject plus second form of verb plus object. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और आपको मैंने पहले बताया था यहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो तो वहां पे हमें अपनी तरफ से was या वर ऐड करना होता है। सो द एक्टिव इज वी काउंटेड द मनी। इट्स पैसिव, द मनी विल बी शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसको हम उठा के आगे ले आए। नाउ मनी इज अनकाउंटेबल, सो विल यूज वॉज आफ्टर दिस। द मनी वॉज काउंट, काउंटेड, काउंटेड, सो हियर थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो काउंटेड। देन विल एड द प्रेपोजिशन बाय। ये जो वी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अस। द मनी वॉज काउंटेड बाय अस। नेगेटिव, वी डिड नॉट काउंट द मनी, so its passive is the money was not counted by us. Interrogative, did we count the money? So in place of did, here we have to use was or were. Was the money counted by us, question mark. Negative interrogative, did we not count the money, question mark. So the passive is was the money not counted by us, question mark. देखो कितना आसान है। सो यहां कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो उसके साथ was या वर ऐड करना है। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस में was और वर पहले से ही लगा होता है और इसके साथ हमने being ऐड करना है। एक्टिव, he was disturbing me। पैसिव, अब मी आगे आके आई बन जाएगा। आई वॉज बींग डिस्टर्ब्ड बाय हिम। ही पीछे जाके बाय हिम में कन्वर्ट हो गया। अब आई के साथ आपको पता है हम वॉज यूज करते हैं और डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डिस्टर्ब्ड। नेगेटिव, ही वॉज नॉट डिस्टर्बिंग मी, सो इट्स पैसिव इज आई वॉज नॉट बींग डिस्टर्ब्ड बाय हिम। Interrogative, was he disturbing me, question mark. Passive, was I being disturbed by him, question mark. Negative interrogative, was he not disturbing me, question mark. So passive is was I not being disturbed by him, question mark. So students, कुछ मुश्किल है इसमें? कितना आसान है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो सेंटेंस में ही हैड प्लेड अ मैच, यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो आपको मैंने बताया है इफ हैड इज देयर वी हैव टू ऐड बिन। तो इसमें आपको टेंसेस भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने सेंटेंस देखना है। यहाँ पे हैड है तो इसमें हम बिन ऐड करेंगे अपनी तरफ से।
he had played a match. तो इसके पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है? A match will be shifted in front at the place of subject. A match had. अब परफेक्ट टेंस में तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ had यूज होता है, तो हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली had लगा देना है और उसके साथ been लगाएंगे. अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही यूज होती है, तो वो भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. बाय हिम. अ मैच हैड बीन प्लेड बाय हिम. सो सिंपल. नेगेटिव. He had not played a match. So the passive is a match had not been played by him. Interrogative. Had he played a match? Question mark. Passive. Had a match been played by him? Question mark. Negative interrogative. Had he not played a match? Question mark. So the passive is had a match not been played by him? Question mark. Now next is simple future tense. अब simple future में हमने will और shall यूज किया होता है, तो इसमें भी बेटा वही modal verbs वाला रूल आता है. यहाँ पे will और shall है, तो यहाँ पे हम be ऐड करेंगे और verb थर्ड फॉर्म में चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल, he will sign the deal. इसका पैसिव क्या बनेगा? the deal शिफ्ट होके आगे आ जाएगी. उसके बाद will, उसके बाद हम be ऐड करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ साइन इज साइंड और he is converted into by him. ये हमने आगे टेबल में देखा था. सो द डील विल बी साइंड बाय हिम. कितना आसान है. नेगेटिव. he will not sign the deal. पैसिव इज the deal will not be signed by him. Now interrogative. will he sign the deal? Question mark. So negative passive क्या होगा इसका? Will the deal be signed by him? Question mark. Negative interrogative. Will he not sign the deal? Question mark. Passive is will the deal not be signed by him? Question mark. Now students, future perfect tense. Here the rule is subject plus will or shall plus have plus third form of verb plus object. अब इसमें have है, तो फिर से हमें इसमें been ऐड करना है अपनी तरफ से. एग्जाम्पल, she will have cooked the meal. द मील को उठा के आगे सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे. फिर विल हैव, उसके बाद हम हैव के बाद बिन ऐड करेंगे और परफेक्ट टेंस में तो पहले से ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है. एंड शी चेंजेस इनटू बाय हर. शी विल हैव कुक्ड द मील. पैसिव इज द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर. नेगेटिव. शी विल नॉट हैव कुक्ड द मील. पैसिव द मील will not have been cooked by her. Interrogative. Active is will she have cooked the meal? Question mark. Passive. Will the meal have been cooked by him? Question mark. Negative interrogative. Will she not have cooked the meal? Passive. Will the meal not have been cooked by her? Question mark. So students, isn't it simple? Now passive of modal auxiliaries. ये बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ कहीं भी आपके सेंटेंस में modal verb आ जाए, यानी will, would, shall, should, can, could, may, might, must, has to, have to, ought to. So वहां पे हमने modal के बाद be लगाना है और verb की थर्ड फॉर्म, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं. Here I have given you some examples. I can solve this sum. तो इसे पैसे में कैसे चेंज करेंगे? This sum can be solved by me. Ram could catch the thief. The thief could be caught by Ram. He may help you. अब you आगे आ गया. You may be helped by him. Lavi might sell his bike. His bike might be sold by Lavi. You should respect your elders.
Your elders should be respected by you. We ought to obey our teachers. Our teachers ought to be obeyed by us. They must follow the traffic rules. The traffic rules must be followed by them. So isn't it simple? Now let us see conversion of imperative sentences. Imperative sentences means verbs expressing command, advice, request, order, etc. So when the verbs expressing command, advice or request are changed into the passive voice, the form of the verb in the passive is let plus object plus be plus third form of verb. For example, active, click the submit button. Passive, first we'll use let और object है the submit button. After let we will use that. उसके बाद हम ऐड करेंगे be. फिर verb जो है click, it will be changed into third form, that is click. और बेटा imperative sentences को पहचान आप कैसे सकते हो? ये sentence usually verb से ही शुरू होते हैं डायरेक्ट. कई बार इसके बाद इससे पहले प्लीज वगैरह लगा होता है. सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल. अब अगर आपका सेंटेंस लेट से ही शुरू होता है तो उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है? एक्टिव, लेट हिम प्ले टेनिस. सो इन पैसिव इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट टेनिस आ जाएगा. बी प्लेड बाय हिम, लेट टेनिस बी प्लेड बाय हिम. नाउ अगर नेगेटिव में है इंपेरेटिव सेंटेंस तो वो डू नॉट से शुरू होगा. डू नॉट पिक फ्लावर्स. सो पैसिव, लेट फ्लावर्स नॉट बी पिक्ड. नाउ स्टूडेंट्स, when the verbs expressing command, advice or request begin with please or kindly, the sentence in the passive voice takes the words you are requested. यहां हम अपना सेंटेंस you are requested से शुरू करेंगे, followed by the active infinitive यानी to plus first form of verb. Now let us see this example. Active, please sign this agreement. तो इसका पैसिव क्या होगा? You are requested, उसके बाद हम to लगाएंगे, to sign this agreement. One more example for you. Kindly grant me full fee concession. So passive is you are requested to grant me full fee concession. Isn't it easy? Now when the advice or order is limited up to the subject and the action is not carried forward to the object, the sentence in the passive takes the words you are ordered or advised followed by the active infinitive, that is to plus first form. For example, keep to the left. Passive, you are advised to keep to the left. Active, shut the door. Passive, you are ordered to shut the door. So students, I hope you have understood the rules of converting active to passive voice. And now here is an exercise for you. Change the following sentences into passive voice. So please change these sentences into passive voice using all the rules which I have explained to you in this video. Now students, here these are the answers to lecture 5. I hope you would have solved this exercise when you saw my previous video, and now you can match your answers here. And students, this is the last video on active and passive voice. That is why I have given you answers of this lecture here itself. So after solving the exercise, please match your answers here.
Students, thank you very much for watching this video, and for more such videos, kindly subscribe to my channel and please do not forget to press the bell icon for the latest updates. और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो so please tap the like button and share my videos with your friends and do comment, because your likes and comments are very important for me. And if you are a new viewer, please subscribe to my channel. Thank you very much.